Great web design without functionality is like a sports car with no engine. It's like it is essential to keep learning, experimenting, and exploring new ideas to remain relevant in the web development industry. So friends, get ready for an extraordinary web development session as we have not one, not two, but three exceptional speakers joining us today. Let me introduce them to you. Manan Bhaiya, Senior Tech Team, NSCC BPIT. He is a full stack developer and a Flutter developer. He has been a mentor in the Winter of Code 23 at Jalpaiguri Government Engineering College for an open source event. Deepti Didi, Senior Tech Team, NSCC BPIT. She is a MERN stack developer. She worked as a part-time contributor in the Girl Script Summer of Code for 5 months. Also, she completed her intern from Up to Skills in web development. She is currently working on Credsoft project. Abhinav Bhaiya, Senior Tech Team, NSCC BPIT. He is a MERN stack developer and he is working as a placement coordinator of our college. Now I request Abhinav Bhaiya to proceed further with the session. Thank you, Garansh. My name is Abhinav. So, today I, along with Deepthi and Manan, will help you explore the world of web development. First of all, let's look at today's agenda. First of all, we will explore the world of web development and learn about the importance of web development. Then, we'll know the difference about front end development and back end development. Then, we'll share some resources with you to learn web development and give you some insights about the industry. Next slide. Next slide, Manan. Yeah, so first of all, let us talk about the importance of web development. Web development is very crucial for every company. In today's digital world, every company needs an online presence. Thus, every company needs a website. Web development is very important technology to learn because it has maximum job in today's market. Every company needs to have a website, whether their main product is a website or not. For example, if we consider example of a company whose main product is a app, still it needs to have a website to display the information about its app and some contact details. ना यार अब तुम सब पूछोगे कि भैया वेब डेवलपमेंट तो बहुत बोरिंग और आउटडेटेड सी टेक्नोलॉजी लगती है। 90s की टेक्नोलॉजी है, आजकल सब ए आर वी आर कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, और आप कह रहे वेब डेवलपमेंट करो। तो मज़ा सा नहीं आ रहा ये बात सुन के। तो ऐसा नहीं है यार, वेब डेवलपमेंट के मल्टीपल यूज़ केसेस है। जैसे मोस्टली वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वेब डेवलपमेंट माइट बी बोरिंग बट इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी इन टूडेज वर्ल्ड। और वेब डेवलपमेंट comprises of two parts, front end and back end. So if you are also learning app development, back end development becomes very important for you because the back end for an app will be seen. All the CRUD operations you learn in web development will be applicable to app development as well. So web development is very useful, and continuous improvements in this field are being made to update the multiple frameworks. Next slide. Next slide, Manan. First of all, let us look about the basic fundamental technologies used in web development. So essentially, there are three main technologies that define a web page: HTML, CSS, and JavaScript. HTML can be considered as a skeleton or a structure for a website. HTML basically describes the structure of a website. CSS is used to beautify the web pages, and JavaScript add functionality or logic to our web pages. For example, if we consider an example of human body, so the skeleton can be similarized to HTML, our skin can be similarized to CSS,
and the brain or the logic and functioning can be similarized to JavaScript. Now, Deepthi will guide you further about front-end development. Thank you, Abhinav, for providing such insights. Next slide, please, Manan. ओके सो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे कॉमनली हमें ये दो टर्म सुनने को मिलती है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट. आप लोगों ने भी सुनी होंगी एंड आप में से कई लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा. बट हम एक बार देखते हैं कि असल में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है. लेट्स डाइव डीप इनटू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. सो फ्रंट एंड रेफर्स टू एवरीथिंग दैट यू सी इन अ वेबसाइट एंड यू आर एबल टू इंटरैक्ट विद. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेजोन वेबसाइट पे जाते हैं, सो आपको वहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी दिखती है. आप अपने इतने वहाँ पे देयर इज अ लार्ज पूल ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें से आप अपने कुछ भी पसंद के प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं. एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी होते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. वहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, कार्ट का ऑप्शन होता है और सो मेनी बटन्स एंड द यूजर इंटरफेस दैट यू सी, उसमें बहुत सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही होती है. एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू सी एंड यू आर एबल टू इंटरैक्ट, वो सब आपके फ्रंट एंड का पार्ट होता है. अब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका क्या रोल होता है? जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारी वेबसाइट को यूजर के लिए अपीलिंग बनाना एंड इजी टू यूज बनाना. हम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर वो वेबसाइट हमें बहुत इजी टू यूज है और फास्ट काम करती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्लो रेंडर नहीं हो रही है, अच्छे से हमें सारी चीज़ें रीडेबल है, तो हम उस वेबसाइट को बार बार विजिट करना पसंद करते हैं. बट अगर हमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता तो ऑफकोर्स हम उस वेबसाइट को नहीं विजिट करते हैं. तो जब भी अब अगर हम पहले हम यूजर थे, अब हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एज अ डेवलपर सोचेंगे. तो जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं. हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले उसका एक डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, या तो हम प्रिपेयर करेंगे खुद फ्रंट एंड डेवलपर, या फिर हमारी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो डिजाइनिंग की अलग टीम होती है, फिर वहां से हमें डिजाइन मिलता है, हम उसको बनाते हैं. बट अभी अब सीखने के लिए थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपको चाहिए कि आपको बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिएटिव इनोवेटिव होना चाहिए. एक जनरल आइडिया अबाउट द वेबसाइट्स. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अभी हमारा इसके बाद जो सेशन होगा वो यूआई यूएक्स पर ही होगा, तो आपको वहां पे भी बहुत इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को बहुत ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, डिजाइन एस्पेक्ट्स उसके कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. बट अगर हम अभी के लिए डिजाइन को साइड करें और कोड के बारे में सोचें, तो अगर हम एज अ डेवलपर सोचे, हमें सबसे पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, एक स्केलेटन. कि हर एक वेबसाइट में आपने देखा होगा नैव बार होता ही है हमारे नेविगेशन के लिए, उसमें हमारे होम, अबाउट, कॉन्टेक्टर्स, इस तरह के पेजेस होते हैं. उसके बाद हमारा एक मेन कंटेंट होता है जिसमें मेन बॉडी, जिसमें आपको सारी चीजें नजर आती है, साइड में एड्स वगैरह भी रन कर रहे होते हैं. फिर नीचे एक फुटर होता है जिसमें कि आपके सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह, जनरली ऐसा स्ट्रक्चर वेबसाइट का रहता है. तो एक हमारा जो HTML है, जैसे कि अभिनव ने भी अभी बताया, वो हमारे वेबसाइट को स्केलेटन प्रोवाइड करता है. उसमें हम बेसिकली एलिमेंट्स बताते हैं कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या होंगे. अब HTML टैग्स पे काम करता है. देयर आर सो मेनी टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद देम. फॉर एग्जांपल, हेडिंग के लिए हमारे पास H1 to H6 टैग्स होते हैं. ये जनरल बेसिक चीजें हैं. आप कभी भी आप HTML का कोर्स करोगे तो उसमें आपको सारे बेसिक टैग्स बताए जाएंगे. आपके पास पैराग्राफ के लिए टैग्स है, इमेज इंसर्ट कर सकते हो आप उसमें वीडियो के लिए आई फ्रेम्स वगैरह डाल सकते हो. सो आपको जो भी वेबसाइट में चाहिए आप वो डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्या उसमें चाहिए. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब जब एक बार आपने स्केलेटन तैयार कर लिया, आपके पास एलिमेंट्स आ गए कि ठीक है यहाँ पे नैव बार होगा, इसमें हमारा ये मेन कंटेंट हो जाएगा, यहाँ इमेज होगी, यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन होगा. अब आप उसे स्टाइल करोगे, क्योंकि HTML प्लेन हमारे बस एलिमेंट्स को रेंडर कर देती है. बटन भी जो नॉर्मल होता है HTML का वो बहुत सिंपल सा दिखता है, उसमें कुछ डिजाइनिंग नहीं होती है. तो अब हमें उसको अच्छा भी तो दिखाना है, तो अब हम उसे बेसिकली कपड़े पहनाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे. उसके लिए हम CSS यूज करते हैं. अब CSS में भी स्टाइलिंग के लिए वी हैव सो मेनी थिंग्स. नेटिव CSS में हमारा काफी अच्छी स्टाइलिंग हो जाती है, बट हमारे पास फ्रेमवर्क्स भी है जिसपे हम बाद में मूव करेंगे. बूटस्ट्रैप, टेलविन वगैरह के बारे में आपको बाद में बताएंगे. अभी हम लेट्स फोकस ऑन नेटिव CSS. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
तो हमारा CSS में क्या होता है, अभी वैसे तो अभी तो हम यहाँ पे पूरा पढ़ने तो नहीं बैठे, हम ओवरव्यू लेते हैं। तो CSS में हम सेलेक्टर्स होते हैं। अब हमारे HTML में हमारे कोई भी एलिमेंट है, हम उसको आईडी और क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम फिर उससे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने उठा लिया कोई पैराग्राफ को, हमने आईडी दे दी कि मेन इन्फो पैरा है, अपने उसे CSS में उठाया सेलेक्टर्स की हेल्प से। अब हम उसको फॉन्ट साइज, उसका बैकग्राउंड कलर, उसके सारे जो भी हमें उसके डिजाइनिंग करनी है, पोजिशनिंग वगैरह, हम उसको करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ CSS जो हम यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में, पोजिशनिंग के हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे नजर आएगा वेबसाइट में, उसके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और इस तरह के सारे आप जब पढ़ोगे आप देखोगे। बॉक्स मॉडल बहुत कॉमन है। हमारा कोई भी एलिमेंट होता है तो उसमें सर्टेन एरियाज डिफाइंड होते हैं, जैसे कि जो मेन कंटेंट जो स्पेस वो लेगा, फिर उसमें कुछ पैडिंग होती है, बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है, फिर बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है, जिससे कि हम उसको स्पेसिंग दे सकते हैं कि वो रीडेबल बने। और फिर हमारे लेआउट के लिए फ्लेक्स बॉक्स और ग्रेड जो भी आपको सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हो। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम मीडिया क्वेरीज यूज करते हैं। और एनिमेशन ऑफ कोर्स हम वेबसाइट को प्लेफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। पर यहाँ पे जैसे नॉर्मली CSS क्या करता है, HTML क्या करता है, ये सब चीजें आपको कोई भी बता देगा। बट अभी आप सेशन में आए हो तो यहाँ पे आपको कुछ अलग मतलब इन्फॉर्मेटिव हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने चीजें सही करी वो भी, और जो हमने गलत करी वो भी हमें आपको हम बताना चाहते हैं, सो दैट आप वो गलतियां ना करो, है ना। तो अभी हमने देखा HTML और CSS। अब जनरली क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम बिगिनर होते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत पैशनेट होते हैं, हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी होती है कि हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, प्रॉपरली सब कुछ करेंगे। तो हम HTML में देखते हैं कि हम सोचते हैं कि सारे टैग्स हम कर लेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स हम सीख लेंगे। CSS में हम जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाया है बहुत ज्यादा, तो हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जितने की नीड भी नहीं होती कई बार। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम इसको पूरा सीख ले, बट हमें ये समझना होगा कि अभी तक हम एक स्टूडेंट थे, तो हम जो पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए और जो हम डेवलपमेंट करते हैं वो अलग चीजें हैं। हमें पढ़ाई की तरह डेवलपमेंट नहीं करनी होती। डेवलपमेंट इज लाइक एन ओपन बुक एग्जाम। आपके पास गूगल हमेशा होता है, एंड इसमें गूगल यूज करना एनकरेज होता है, आपको गूगल यूज कर सकते हो आप कभी भी। तो आप इस तरह से कभी परेशान मत होना कि आपको ये चीजें सब कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा है, या फिर आपसे सब कुछ अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप हमेशा गूगल कर सकते हो, और हम वैसे ही सीखते हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो इसमें अभिनव वुड आल्सो लाइक टू ऐड समथिंग। अभिनव, वुड यू? या आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद दीप्ति। जब क्या होता है, जब हम बिगनर होते हैं ना, तो हमें एंथुजियाज्म बहुत होता है। तो हम जैसे HTML लेके बैठते हैं तो हमें बहुत ओवरवेलमिंग भी लगता है कि यार भैया इतने सारे टैग्स हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सब याद करने हैं, सब प्रैक्टिस करने हैं। तो वो राइट अप्रोच नहीं है। राइट अप्रोच ये है कि हम बेसिक टैग्स को एक बार देखें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, और HTML हमें विद इन, जैसे हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे तो हमें उस पर नॉलेज और बढ़िया होगी। जैसे ही हम हैंड्स ऑन करेंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमें समझ आएगा हमें क्या गूगल करना है, क्या रिमेंबर करना है और क्या रिमेंबर नहीं करना। जैसे CSS में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना। तो हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी होनी चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे यूज़र्स ऐसे भी होंगे जो हमारी वेबसाइट्स मोबाइल से एक्सेस करेंगे, टैबलेट से एक्सेस करेंगे। तो अगर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो बहुत ख़राब प्रैक्टिस होती है। तो उसके लिए जैसे अभी दीप्ति ने आपको बताया था कि हम फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, तो बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है, ये फ्रेमवर्क्स हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सारी CSS की प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। हम इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम फटाफट पोर्ट कर सकें। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो किसी भी टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स है, एसेंशियल हैं, उनको सीखना और उनके कंसेप्ट पे ग्रिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CSS में सेलेक्टर्स है, कोई भी आपको HTML का एलिमेंट या एट्रीब्यूट टारगेट करना है तो सेलेक्टर्स की नॉलेज बहुत पावरफुल है। बॉक्स मॉडल की नॉलेज बहुत पावरफुल है। फ्लेक्स बॉक्स, डिज़ाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स, प्लेसिंग देम हॉरिजॉन्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मीडिया क्वेरीज है, मीडिया क्वेरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए। तो अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, सो अब हमने HTML एंड CSS से हमारी एक वेबसाइट तैयार हो गई, देखने में भी अब वो अच्छी लग रही है, हमारे एलिमेंट्स आ गए, बट अभी वो फंक्शनल नहीं है। हमने कार बना दी है, उसमें व्हील्स भी है पर वो चल नहीं सकती है। हमारे पास बटन्स है पर बटन्स क्लिकेबल नहीं है। तो अब हम उसे क्लिकेबल कैसे बनाएंगे, हम उसे इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे? उसके लिए जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो JavaScript is also known as the language of the web. It is the most popular language for web frameworks. तो JavaScript हम यूज करते हैं। अब बिगिनर्स में आप जावा और जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूज मत होना, दीज आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट क्रिएटर्स ने तब जावास्क्रिप्ट नाम रखा क्योंकि जावा पॉपुलर थी, तो उन्होंने सोचा थोड़ा फायदा उठाया जाए पॉपुलैरिटी का जावा की, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट नाम रखा। बट वैसे जावास्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेज है, और हमारे जैसे C++, जावा ये सब स्टैटिकली टाइप्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर स्टैटिक से मीनिंग है, जैसे कि हमारे जो भी डाटा टाइप्स होते हैं, इंट, कैरेक्टर, बूलियन, तो हम उनको पहले से डिफाइन कर देते हैं। कोई वेरिएबल अगर हमने इंट डिफाइन कर दिया तो बाद में हम उसे स्ट्रिंग या कैरेक्टर में चेंज नहीं कर सकते। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, डायनामिक है। इसमें हम उसके डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं कभी भी। अभी एक हमारा वेरिएबल x है, वो अभी नंबर स्टोर कर रहा है, हम बाद में x में ही स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा, मुझे तो मतलब बहुत प्यारी लैंग्वेज लगती है। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी यूज़ होती है ये, और क्लाइंट साइड पे भी यूज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट में मतलब जैसे कि अभी हम बेसिक अगर फंक्शनैलिटी देखें, अभी स्टार्टिंग में हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, तो अभी आपको ओवरवेलमिंग ना लगे। आप जैसे जावास्क्रिप्ट देखोगे तो बेसिकली कोई भी लैंग्वेज होती है, आप सिंटेक्स देखते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे डिफाइन करनी है, फंक्शंस कैसे डिफाइन करनी है, क्या करना है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का बाकी लैंग्वेजेस जो आपने सीखी होंगी, मे बी आपने C++ या फिर पाइथन सीखी होगी, क्योंकि वो आप वैसे उसमें कोड करके सीख रहे थे, तो आपने अभी जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे डॉम मैनिपुलेशन, क्योंकि हम वेबसाइट के साथ काम करें। तो अब जो डॉम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें हमारे सारे जो भी एलिमेंट्स उनकी हिरार्की होती है, एक ट्री होता है, उसमें हमारे पेरेंट कंपोनेंट्स एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब उसमें मैनिपुलेट करना, अभी तक हम HTML CSS से लिख रहे थे, हमने एक बार स्टैटिकली लिख दिया कि यहाँ पे एक बटन होगा, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसकी पोजीशन ये रहेगी, उसका कलर ये रहेगा। लेकिन अब यूजर ने कुछ उसके साथ इंटरेक्ट करा, तो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, वो मैनिपुलेशन का काम हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। इसमें पूरा लॉजिक लिखा जाता है। आपका इसमें लॉजिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जब लॉजिक बिल्ड कर लेते हो तो जावास्क्रिप्ट में आप वो यूज करोगे। तो डॉम मैनिपुलेशन के लिए आप सीखोगे कि कैसे डॉम मैनिपुलेट करते हैं, एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिस्ट में मेंशन चीज़ है, तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी एक साथ बिगिनर्स के लिए फैच API, मतलब API एप्लीकेशन के लिए हमारा किसी भी हमें बाहर से डाटा लेके आना है अपने उसमें, तो हम उसके लिए API यूज करते हैं। असिंक इवेंट भी ये एडवांस टॉपिक्स में आ जाता है। इवेंट लिसनर्स, हमारे बटन पे हम हमारे किसी भी चीज़ पे हम इवेंट लिसन करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लिक इवेंट को लिसन करने के लिए या फिर की प्रेस को लिसन करने के लिए उसमें एक फंक्शन बनाएंगे, उसी को इवेंट लिसनर कहते हैं, उसमें कॉल बैक्स वगैरह जाती है। तो अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते टॉपिक्स पर, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी वही चीज़ है, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा अगर आप एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे पेस पे आराम से आगे बढ़ना और आराम आराम से समझ के करना। एंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक कम्युनिटी अपनी रखो। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपके पास आपके एक फ्रेंड सर्कल हो जिनसे आप अपने चीज़ें डिस्कस कर सको। ऐसे ही अब हम आपके सीनियर्स हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप हमसे भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो अपने आप को ना, मतलब ऐसे इसमें किसी भी चीज़ में परेशान मत होना, और इसे बहुत आराम आराम से सीखना। अभी आपके पास टाइम भी होगा, और आप इसको एक बार चीज़ें समझ आने लगती है तो ओवर टाइम वो खुद हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अभी जब हमने बात करी HTML CSS JS की, तो ये बेसिक टेक्नोलॉजीज होती है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम ये टेक्नोलॉजीज सीखते हैं, है ना। और अच्छी बात यह है कि बहुत आसान भी है इन्हें स्टार्ट करना। HTML CSS मतलब आसान लगती है सबको, और बहुत अच्छा भी लगता है, फन भी रहता है उसको बनाते हैं, हम कुछ क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से, हमें बहुत अच्छा फील होता है। बट अब अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही आगे जाना चाहते हैं, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना, अगर आपने मान लो HTML CSS JS कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैकएंड ओरिएंटेड हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे बैकएंड पे ज्यादा काम करना है, तो आपके लिए अभी ये जरूरी नहीं है कि आप कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी लर्न करो, आप बैकएंड सीख सकते हो। बट अगर आपको फ्रंट एंड पे फोकस करना है, तो फ्रंट एंड में कभी भी अगर हमें स्केलेबल वेबसाइट्स बनानी है, हमें कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर हम उसे नेटिव कोड जावास्क्रिप्ट से लिखने की कोशिश करेंगे HTML CSS से, तो वो
उतना हम अच्छे से एफिशिएंटली नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अब अगर आप सोचते हो कि हाँ भाई मुझे फ्रंट एंड में अच्छे से जाना है आगे और फ्रंट एंड को अच्छे से सीखना है, तो आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसके ऊपर बेस्ड ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, जैसे रिएक्ट, एंगुलर वगैरह। तो रिएक्ट सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर है, फेसबुक ने इसको बनाया था। और अब यहाँ पे देख सकते हैं सो मेनी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आर देयर। तो अब लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप एकदम से ऐसे रश नहीं करना फ्रेमवर्क सीखने के लिए। पहले जब आप HTML CSS एंड स्पेशली जावास्क्रिप्ट आपके जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आप लॉजिक बिल्डिंग आपका हो गया, आपको समझ आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट से कोई चीज कैसे काम करती है, तब उसके बाद आप मूव करना किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, ये जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यूज होते हैं। अब रिएक्ट में आपका अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन लिखोगे, अगर उसमें अगर एडवांस टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के आपके असिंक अवेट फंक्शंस, आप जनरली प्रोमिसेस रिजॉल्व करोगे, वो सब, तो आपको वो सब चीजें आनी चाहिए, उसके बाद ही मूव करना, नहीं तो फिर मतलब समझ में नहीं आएंगी चीजें। बट आपको लगता है अब आप कंफर्टेबल हो जावास्क्रिप्ट से, फिर आप मूव कर सकते हैं। अब इसमें इन फ्रेमवर्क्स में से सबसे पॉपुलर रिएक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहती है। वैसे कोई भी आप चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट रिएक्ट का जो लर्निंग कर्व है वो भी हमारा इजी रहता है एज कम्पेयर टू एंगुलर एंड अदर्स। तो अभी हम इस आज की प्रेजेंटेशन में हम रिएक्ट के बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे, एंड फॉर दैट अभिनव विल टेक ओवर फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू दीप्ति। तो रिएक्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे हेटेड लैंग्वेज भी है वर्ल्ड में और सबसे लव्ड लैंग्वेज भी है। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है ब्राउज़र के लिए और अभी तक डोमिनेट कर रही है। तो ऐसा क्या है कि मतलब जावास्क्रिप्ट को सब मतलब उससे परेशान भी है और उसको उतनी पावरफुल भी है और सबको पसंद भी है। तो जो जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर है ना, जो हम कॉल बैक्स और प्रॉमिसेस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत एसेंशियल है। तो आप थोड़ा आज इसके बारे में रिसर्च करना कि जावास्क्रिप्ट का क्या ऐसा एसिंक्रोनस नेचर है जो उसको इतनी पावरफुल लैंग्वेज बनाती है। और अभी इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि HTML CSS पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो विद द टाइम हम सीख सकते हैं, उनमें हमें एक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ना चाहिए। पर जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें जो भी सारे टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट के जो प्रीवियस स्लाइड में मेंशन थे, उनको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो एक अच्छा वेब डेवलपर होगा और जो एक एवरेज वेब डेवलपर होगा, उसमें HTML CSS की नॉलेज का फ़र्क नहीं होगा। उसमें फ़र्क होगा कि इसकी जावास्क्रिप्ट पे कमांड अच्छी है। कोई भी अगर आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दोगे या कहीं भी दोगे, तो आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हर जगह चेक होगी, रादर देन रिएक्ट, रादर देन एनी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपडेट्स मार्केट में आते रहेंगे, उनके साथ आपको एक्वेंटेंस होना ही पड़ेगा। पर जिसकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज बहुत पावरफुल है, वो हमेशा डोमिनेट करेगा इंडस्ट्री में। तो रिएक्ट को सीखने के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमें ES6 सिंटैक्स के बारे में पता होना चाहिए, एरो फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, और एरे के मेथड्स है कुछ, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। तो जब तक हमारी इनकी नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम रिएक्ट के ओवर मूव नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे रिएक्ट की। तो यार तुम सब सोचोगे कि इतनी क्या हाइप बना रखी है रिएक्ट की, कि सब कह रहे हैं रिएक्ट कर लो, रिएक्ट कर लो, ऐसा क्या है रिएक्ट में, और इतनी सारी मल्टीपल जॉब्स है रिएक्ट में। तो ऐसा है क्या रिएक्ट में कि इतनी हाइप बना रखी है? तो जब रिएक्ट नहीं था ना, तब क्या होता था कि हमें, तब हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस था वो इतना बढ़िया नहीं था। कोई भी अगर यूज़र इंटरेक्शन होती थी वेबसाइट पे, कोई भी इवेंट ट्रिगर होता था या कोई भी बटन क्लिक करने पे कुछ भी होता था, तो वेबसाइट हमारी री रेंडर होती थी। उससे क्या है, डिले आता था कुछ सेकंड्स का, और वो यूज़र एक्सपीरियंस में इतना बढ़िया चीज़ नहीं थी। तो रिएक्ट का एक की फीचर, जो सबसे प्रोमिनेंट की फीचर है, वो है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल फीचर है। तो रिएक्ट क्या करता है, जो भी हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। जैसे हेडर कंपोनेंट अलग हो गया, फुटर अलग हो गया, एक मेन बॉडी अलग हो गई। और क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होगा या इवेंट ट्रिगर होगा, वो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो रिएक्ट री रेंडरिंग और स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो इसलिए रिएक्ट इतना पावरफुल टूल है। जो रिएक्ट में प्रॉप्स हैं, या स्टेट मैनेजमेंट है, हुक्स है, ये सारे बहुत पावरफुल फीचर हैं जो हमें वनीला जावास्क्रिप्ट, वनीला HTML CSS के बजाय रिएक्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट्स जल्दी बने और स्केलेबल बने। जैसे रिएक्ट का एक बहुत अच्छा फीचर है प्रॉप्स।
जैसे आपने अमेज़न देखा होगा, जैसे अमेज़न की वेबसाइट है, तो उसमें एक कार्ड कंपोनेंट होता है, जिसमें कार्ड कंपोनेंट का मतलब है जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी इमेज होगी, उसका प्राइस होगा, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट होगी, वगैरह वगैरह होगा, तो कुछ फीचर्स होंगे। तो अब एक तरीका तो यार हम हर प्रोडक्ट के लिए बार बार वो कार्ड कंपोनेंट बनाएं, बार बार इमेज लोड करें, बार बार उसका प्राइस लिखें। पर प्रॉप्स की हेल्प से क्या होता है, हम एक जगह डेटा स्टोर कर लेते हैं और फिर पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करते हैं। तो हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता। इससे हमारा ड्राई प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एप्लीकेट होता है। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके वजह से रिएक्ट इतना पॉपुलर है और इतना पावरफुल टूल है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे वेब डेवलपमेंट कर रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, तो अब क्लास कंपोनेंट्स इतने यूज़फुल नहीं है। जब से फेसबुक ने हुक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। यू शुड स्विच टू फंक्शनल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या सो ऐसी जैसे हमारी CSS की लाइब्रेरीज़ हैं, ऐसी हमारे को रिएक्ट की स्टाइलिंग के लिए भी मल्टीपल लाइब्रेरीज़ हैं। मोस्ट पॉपुलर है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या अब जैसे अब आपने कोई वेबसाइट बना ली, फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना ली, तो उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो। ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे नेटलिफाई, वर्सल, गिटहब पेजेस, इनके थ्रू हमारी वेबसाइट डिप्लॉयड होनी चाहिए। और जब भी हम किसी को अपने प्रोजेक्ट से अपना वर्क शो करें, तो हमें उनको डायरेक्ट यूआरएल देना चाहिए कि ये मेरा वर्क है, आप इस यूआरएल को विजिट करके मेरी वेबसाइट देख सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है रिक्रूटर पे भी और कोई भी जो आपको प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा है। नाउ वी विल एक्सप्लोर बैक एंड डेवलपमेंट विद मनन। तो हाय गाइस। तो अभी तक तुमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट देख लिया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब यार तुमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के बाद तुमने अब अपनी बेसिक सी सुंदर सी एक अच्छी सी वेबसाइट तो बना दी जो यूजर्स को अच्छी लग रही है, यूजर्स विजिट कर रहे हैं तुम्हारी वेबसाइट को। बट यार चीजें यहाँ पे ना अभी खत्म नहीं होती है कि अब तुम्हें आना है बैकएंड पे। तो बैकएंड क्या होता है कि यार बेसिकली मान लो अगर तुम जैसे इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम पे लोगों की पोस्ट आ रही होती है, उस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, क्या कमेंट्स हैं। तो जब तुम उस लाइक बटन पे क्लिक करते हो तो लाइक्स इंक्रीज होते हैं। तो ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना कि वो लाइक्स एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, कमेंट्स बिहाइंड द सीन्स कैसे हो रहे हैं और कैसे स्टोर हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें ना बैकएंड में आती हैं। अभी जैसे दीप्ति ने बताया था कि फ्रंट एंड तो कार हो गई, तुम्हें कार के दरवाजे दिख रहे हैं, कार तुम्हारी इस कलर की है, बट उस कार को चलाने वाला तुम्हारा इंजन होता है। तो यही चीज बैकएंड होती है। बैकएंड एक तरह से तुम्हारी पूरी वेबसाइट को वर्क करवा रहा होता है। तो अब बैकएंड में बैकएंड में अब तुम्हारी तीन चीज आती हैं। एक तो तुम्हारा सर्वर हो गया, अब एक हो गया तुम्हारा डेटाबेस, और तीसरी होती है अपनी एपीआईज। तो बेसिकली सर्वर क्या होता है, एक चीज समझ लो जिसकी अब तुम्हारा फ्रंट एंड है। तुम इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहे हो, तो एक्चुअली में होता क्या है, जब तुम लाइक कर रहे हो ना तो वो एक फ्रंट एंड जो होता है ना वो तुम्हारा रिक्वेस्ट मार रहा होता है सर्वर को कि ना मेरे ना लाइक्स इंक्रीज कर दो, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लाइक्स इंक्रीज कर दो। तो वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। उसने वो रिक्वेस्ट रिसीव कर ली, उसने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और फिर प्रोसेस करने के बाद उसने ना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ना अपने फ्रंट एंड को दे दिया। अब फ्रंट एंड का काम क्या है कि लाइक्स को इंक्रीज हो रहे हैं वो यूजर को दिखाना। तो अगर तुम इतना देखो कि फ्रंट एंड का पार्ट है रिक्वेस्ट भेजना, वेब सर्वर का काम है इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और तुम एक रेस्पॉन्स दे देना अपने फ्रंट एंड को। तो ये तो तुम्हारा वेब सर्वर का काम हो गया। तो वेब सर्वर का काम बस इतना ही है कि लॉजिक इंप्लीमेंट करना। बट अभी यहाँ पे डेटाबेस का काम क्या है कि जो भी ये तुम्हारा डेटा है ना कि किस पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, किस यूजर के कितने फॉलोवर्स हैं, तो ये जितना भी तुम्हारा डेटा है ये सब एक जगह पे ना स्टोर हो रहा है, उसको अपन डेटाबेस कहते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा डेटा स्टोर्ड है। और यहाँ पे दोनों को फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने के लिए अब अपनी आती हैं अपनी एपीआईज। तो एपीआईज का काम क्या है कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेना। अब एपीआई क्या करेगी, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेगी, सर्वर को देगी, और सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद अपनी एपीआईज के थ्रू
एक रेस्पॉन्स अपने फ्रंट एंड को दे देगा। तो एपीआईज को तुम एक तरह से ऐसे समझ लो कि यार तुम एक रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में तुमने वेटर को बोला कि यार मेरे को ना ये ऑर्डर ला के दे दे, अब ये मेरे को एक ऑर्डर ला के दे दे। वेटर ने ऑर्डर लिया कि ये ऑर्डर चाहिए, वो ऑर्डर लेके वो अपने शेफ के पास गया कि यार ये ऑर्डर तैयार करके दे दे। जैसे ही वो ऑर्डर तैयार हुआ, वेटर ने ऑर्डर लिया, कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पे वेटर का काम था कि ऑर्डर लेना, ऑर्डर तैयार हो गया, कस्टमर को दे दो। यही काम एपीआईज कर रही है। यही जो वेटर का काम है वही तुम्हारा एपीआईज का काम है। तो अब एक्चुअली में तुम्हें बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे करनी है। तो देखो, बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। अगर तुम जावास्क्रिप्ट चूज करते हो तो तुम्हें नोड.जेएस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम पाइथन यूज करते हो तो तुम्हें जेंगो पे वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली दोनों नोड.जेएस और जेंगो का काम क्या होता है कि एपीआईज का लॉजिक इंप्लीमेंट करना। बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, नोड.जेएस और जेंगो की हेल्प से एपीआईज का लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा, फिर उन एपीआईज को फ्रंट एंड को हैंड ओवर कर देगा, जिसकी हेल्प से फ्रंट एंड अपना रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सर्वर को। और यही नहीं कि तुम जावास्क्रिप्ट और पाइथन से बैकएंड डेवलपमेंट करो, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे गो हो गई, जावा हो गई, बट फेमस ये दोनों हैं, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। और अगर अभी तुम कंप्लीटली बिगनर हो, बस स्टार्ट करने वाले हो, तो यार नोड.जेएस से स्टार्ट करना, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है सीखना। और अगर तुम फ्रंट एंड से आ रहे हो तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती होगी, तो नोड.जेएस पे वर्क करना तुम्हारे लिए और ईजी रहेगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब तुम्हें कोई सा डेटाबेस सीखना पड़ेगा कि डेटाबेस के साथ में एक्चुअली वर्क कैसे करना है। डेटाबेसेस में तुम्हारे दो तरह के डेटाबेसेस आ जाते हैं, जैसे कि एक तो सीक्वल डेटाबेसेस हो गए और नो सीक्वल डेटाबेसेस आ गए। जो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं। अगर तुम आगे जाके अगर आप डीबीएमएस पढ़ोगे तो उसमें आएगा एसक्यूएल। और अगर तुम्हारे जो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उसमें आ जाते हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। और जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उसमें आ जाते हैं तुम्हारे मोंगोडीबी और रेडिस। और ऐसा नहीं है कि यार कि तुमने या तो बस एसक्यूएल डेटाबेस सीख लिया या तो बस नो एसक्यूएल डेटाबेस सीख लिया। एज एज अ गुड बैकएंड डेवलपर तुम्हें दोनों दोनों तरह के डेटाबेसेस के साथ काम करना आना चाहिए। तुम कल को किसी कंपनी में जाओगे, वो शायद एसक्यूएल या नो एसक्यूएल के साथ वर्क कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि यार इतना अब तक जितना पार्ट था ना उतना तो तुमने सीख लिया, अब तुम्हें एक बेसिक अपनी सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हो। बट चीजें ना यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती है कि एक अच्छा बैकएंड डेवलपर कौन होता है जो सिस्टम्स को रोबस्ट बनाए, फास्ट बनाए, स्केलेबल बनाए। और ये सब चीजें करने के लिए, एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए तुम्हें और भी चीजें सीखनी आगे, जिसमें तुम्हारा आ जाता है अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और शायद कल तुम्हारा ओपन सोर्स और डेवऑप्स का था, तो शायद तुम्हें गिट और गिटहब वहां से पता हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। गिट का बेसिकली यूज होता है कि तुम्हारे सोर्स कोड में चेंजेस को ट्रैक करना, और पूरी टीम एक साथ एक पर्टिकुलर सोर्स कोड पे वर्क कर रही है, तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। और एक कोड क्वालिटी मेंटेन करना ना। अब दूसरी चीज आती है बेसिक लिनक्स कमांड्स। तो अब यहाँ लिनक्स कमांड्स क्यों सीखनी है, तो होता क्या है कि जितने भी तुम सर्वर्स पे वर्क कर रहे होगे वो सारे लिनक्स बेस्ड होंगे। अब उसके साथ उसमें तुम्हें डिबगिंग करनी है, इश्यूज को सॉल्व करना है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एडिट करनी है, कमांड्स रन करनी है, तो तुम्हें कुछ बेसिक लिनक्स कमांड्स पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज आती है अपनी डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि बेसिकली अब तुम्हारा सर्वर रेडी तो है, बट वो सिर्फ तुम्हारे पीसी में चल रहा है, तुम्हारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल रही है, बट अब तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट पे लेके जाना है। तो इंटरनेट पे लेके जाने के लिए तुम्हें उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम अपने खुद के पीसी कोई ना सर्वर बना दो, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि तुम्हारा पीसी हर टाइम ऑन रहना चाहिए। उसके साथ अगर कभी लोड बढ़ गया तो तुम्हारे पीसी हैंग हो सकता है, स्लो हो सकता है।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए तो तुम क्या कर सकते हो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा AWS आता है, एजोर आता है, गूगल क्लाउड आता है। इन सब की हेल्प से तुम एक क्लाउड बेस्ड सर्वर बना सकते हो। और अगर तुम्हें सिर्फ अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय मारने, ज्यादा AWS एजोर में नहीं पढ़ना, तो तुम सिर्फ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि render.com हो गई, Heroku हो गई, बट वो पेड है, तो उनमें तुम इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। अब कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के, जो आते हैं HTTP HTTPS प्रोटोकॉल्स। ये कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर रही होती हैं। तुम्हें जेसन वेब टोकन्स के साथ वर्क करना आना चाहिए। रेस्ट एपीआईज बेसिकली अपने CRUD ऑप्शंस क्या, CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वेब सॉकेट्स, CI/CD और हैशिंग, बिगक्रिप्ट। इतने कंसेप्ट्स तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर तुम्हें इतना सब कुछ तुमने कर लिया तो तुम्हें बैकएंड डेवलपमेंट आ गई, तुम एक कंपनी के लिए रेडी हो उसके प्लेसमेंट के लिए, अगर तुम एज ए बैकएंड डेवलपमेंट बैठना चाहते हो। और अगर तुम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर चुके हो ना यार, अब तो तुम एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। फुल स्टैक डेवलपर जो कि दोनों काम हैंडल कर सकता है, चाहे उसको फ्रंट एंड का काम दो चाहे बैक एंड का काम दो। आई होप इतनी चीजें तुम सबको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कूल प्रोजेक्ट्स जो तुम अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अपने ई-कॉमर्स ऐप हो गई, सोशल मीडिया ऐप हो गई, फूड डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन आईडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीप्लेयर गेम्स। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम अपने रिज्यूमे मेंशन कर सकते हो। इससे तुम्हारे रिज्यूमे अच्छा लगेगा कि तुमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रखा है, खुद से एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है। एंड लास्टली हमने कुछ सोर्सेज मेंशन कर रखे हैं तुम्हारे लिए, जिसकी तुम हेल्प ले सकते हो। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कोर्सेज हैं, एंड दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द वेब डेवलपमेंट। तो थैंक यू यार। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का जितना भी हमें बताना था वो खत्म होता है। अब तुम्हारे अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो तुम पूछ सकते हो। यार कुछ ना इनसाइट्स हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहेंगे इसमें। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होती है, और हमारे साथ भी हुई थी, कि हम ना ट्यूटोरियल में फंस जाते हैं कि हम मल्टीपल ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। पहले फ्रेमवर्क का देख लिया, फिर प्रोजेक्ट्स का देख लिया, उसको साथ साथ बैठ के कोड कर रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारी लर्निंग बहुत हैम्पर होती है। वो हम बेसिकली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उससे हमारी लर्निंग कुछ नहीं हो रही। तो हमारा तरीका होना चाहिए कि हम पहले एसेंशियल्स को सीखें, फंडामेंटल्स पे ग्रिप बनाएं, और अगर हमने मान लो एक बार ट्यूटोरियल देख भी लिया, तो उसके बाद खुद सोचे कि अच्छा इस वेबसाइट में क्या था, पहले हेडर था, हेडर के क्या कंपोनेंट्स थे, उनका कोड खुद लिखें। फुटर में क्या था, मेन बॉडी में क्या था, कहाँ बटन था, कहाँ इवेंट लिसनर था। तो हम पहले जब वेबसाइट को खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद कोड लिखेंगे, तो वो एक्चुअल लर्निंग है। और जिस भी स्टेप पे हम अटक रहे हैं वहाँ पे हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। दीप्ति, कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे आप? ये सब ना, आई एग्री विद यू, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जब हम ऐसे लर्निंग में जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें ट्यूटोरियल्स तो देखने ही पड़ते हैं सीखने के लिए, बट हमें रियलाइज नहीं होता कि कब हम इतना ज़्यादा ट्यूटोरियल्स पे रिलाई करने लग रहे हैं कि हम सिर्फ मतलब ट्यूटोरियल्स ही देखे जा रहे हैं। आप अगर डीएसए भी आप करते होगे तो उसमें भी आप पहले सीखने के लिए ट्यूटोरियल देखते हो, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि क्वेश्चंस भी हम देख लें। अब अगर आप क्वेश्चंस मान लो, डीएसए में भी हम ऐसा करते हैं कि आप क्वेश्चंस को सारे देख रहे हो, तो अगर आप ट्यूटोरियल से ही करोगे तो फिर आप खुद नहीं सीख पाओगे। तो वैसे ही इसमें डेव में भी होता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम परफेक्ट चीज़ें बनाएं, हमें परफेक्शन की तरफ अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं मानना है कि हमारी चीजें परफेक्ट हो। हमें बस देखना है कि हम क्या उससे लर्निंग गेन करें। हमारी वेबसाइट छोटी हो, हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। हमने HTML सीखा तो हम एक फॉर्म बनाए HTML का, उसमें फॉर्म जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे उसमें टैग्स वगैरह यूज हो जाते हैं, हमें जनरल आइडिया लग जाता है, ड्रॉप डाउन यूज करते हैं, उसमें हम चेकबॉक्स सब कुछ हर तरह की चीज़ हम यूज कर लेते हैं। और हम CSS देखा तो अब हम क्लोन्स बना सकते हैं किसी, जैसे हमने फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाया बाय यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। अभी आप ज़्यादा उसमें फंक्शनैलिटी की चिंता मत करो, बहुत ये मत सोचो परफेक्ट बनेगा, बट आप
खुद से उसमें आप उसकी प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ। उसके बाद फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो छोटे-छोटे आप प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लो आप डार्क मोड आपको इंप्लीमेंट करना है, तो आप जावास्क्रिप्ट से खुद से सोचो कि आप डार्क मोड का लॉजिक आप कैसे लिखोगे, कैरोसेल आपको इंप्लीमेंट करना है, आप कैसे उसको करोगे, है ना? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर आप करोगे, तो उससे आपको चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलेगी। नहीं तो अगर अभी कभी आप इतना ज़्यादा अगर ट्यूटोरियल्स पे रिलाय करते रहोगे, तो फिर जब बाद में आपको स्क्रैच से कभी कुछ बिल्ड करना होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये एक हमारा यहाँ से आपका की टेक अवे ये रहना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, और बिल्कुल भी टेंशन ऐसे नहीं लेनी है कि आप परफेक्शन की तरफ इतना कभी मत भागना कि उसमें आप चीजें सीखना रह जाए, है ना? हम चाहे कुछ भी बनाए, कैसा भी बनाए, हमें बनाना है, ठीक है? अभी हमारा प्रोडक्शन रेडी नहीं भी है तो भी हमें तो अपने लिए बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गौरांश, अब किसी के अगर कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स के लिए एक मैसेज डाल दो। Yeah, if anyone has any doubts, kindly use the raise hand option in Teams so that we can permit you to use your mic. Yeah, Aryan and Narinder Singh is raising their hands. Hello, am I audible? Hello, good evening, sir. Sir, गुड इवनिंग। Yes, Aryan Pillai, you can ask your doubt, please. hello, am I audible? या यू आर ऑडिबल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा भैया, वो डिप्लॉयमेंट वाली चीज एक बार बता दो, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मतलब एग्जैक्टली डिप्लॉयमेंट का काम क्या होता है। मतलब जैसे अगर वेबसाइट बन गई, फ्रंट एंड बना लिया या बैक एंड हो गया, लेकिन उसको डिप्लॉय करना हो, वो वाला प्रोसेस होगा, थोड़ा सा दोबारा समझा दो, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट देख यार डिप्लॉयमेंट, बेसिक। हाँ तो बोल, तू कंप्लीट कर। हाँ चल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट कैसे हो गया और मैंने बैक एंड का बता दिया। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होती है, जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे नेटलिफाई है, वर्सल है या गिटहब पेजेस है। तो हमने अगर कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना ली जिसके साथ अभी कोई डेटाबेस एसोसिएट नहीं है, तो हम उनको इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि हमारा एक पर्टिकुलर यूआरएल मिल जाए जिसको अगर हम ब्राउज़र में पेस्ट करें तो हमारा प्रोजेक्ट शोकेस हो। तो इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट, की एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आपने अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर दिया। बैक एंड का बता दें मैम। तो बैकएंड में यार अगर तेरे को ज़्यादा मतलब AWS एज़ोर में नहीं पढ़ना, तो और तुझे फटाफट डिप्लॉयमेंट मारनी है ना, तो तू रेंडर सीख सकता है। रेंडर पे कुछ कमांड्स होती हैं और तू तेरा जो सर्वर है ना वो फटाफट डिप्लॉय हो सकता है। डिप्लॉय से होगा कि अब तो तेरा सर्वर ना बस लोकल होस्ट पे चल रहा है, वो सिर्फ तेरा ही पीसी एक्सेस कर सकता है, या जिस नेटवर्क पे तू है तू वहीं से ही एक्सेस कर सकता है। बट होगा क्या कि फ्रंट एंड तेरा कोई पूरी दुनिया में कहीं पे भी यूज कर रहा है। अब वो वहां से रिक्वेस्ट मारेगा, तो उस पर रेस्पॉन्स आना चाहिए। चाहे कोई भी कहीं से भी रिक्वेस्ट मारे, उसको रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए हम अपने सर्वर को डिप्लॉय करते हैं, और उसके लिए तू रेंडर यूज कर सकता है। पहले हेरोकूब बहुत फेमस था, वो यूज होता था, बट अब वो पेड हो गया है। उसका फ्री अल्टरनेटिव है रेंडर, तो तू वो यूज कर सकता है। या फिर अगर तुझे बहुत एडवांस में जाना है, एकदम प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशंस बनानी है जो कंपनीज में बनती है, तो तुम AWS एज़ोर और गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करना सीख सकते हो। दैट्स इट। ओके भैया, समझ में आ गया। सर मैंने सर एमबीए की हुई है सर, तो मैं सर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता हूँ सर। तो ये प्रोजेक्ट्स सर को आप कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हो सर? एग्जैक्टली सर। और सर कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर मुझे, अगर मैं टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता हूँ सर? बेसिकली अगर आप अभी MBA में हैं और आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि
एक्चुअली में कई 6 महीने इनफ होते हैं सीखने के लिए, सबका ठीक है अपना सर। अपना डिमांड। 6 मंथ्स इनफ होते हैं अच्छे से सीखने के लिए हर चीज एक टेक्नोलॉजी को, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आई थिंक 6 महीने इनफ है। और अगर आप जाना चाहते हैं MBA से, अब आपको बैकएंड वो वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो आई थिंक पेड कोर्सेज की उतनी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत अवेलेबल हैं पेड कोर्सेज। अगर तभी लो कि तुम्हें जब कोई अच्छा मेंटोर मिल रहा है वहाँ पे, जो तुम्हारे अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर कर दे, कभी तुम कहीं पे अटक रहे हो तो वो उसको सॉल्व कर दे, तो पेड कोर्सेज उसमें हेल्प आते हैं। वरना अगर तुम खुद से सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। और सर और इसके अलावा सर आप कोई कोर्स प्रोवाइड करवाते हो सर, जैसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहूँ सर, अगर मैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चाहता हूँ सर? हेलो। हम नहीं आप प्रोवाइड करते, हम आपको एक पाथ दे सकते हैं कि ये फॉलो कर लो, इससे आप सीख सकते हो। ठीक है सर। आपका सर कुछ मिल सकता है सर मुझे ईमेल आईडी सर कांटेक्ट के लिए सर? नॉट डायरेक्टली सर, इनडायरेक्टली सर। We will share our LinkedIn profiles later on. ओके सर, श्योर सर। और सर इंटर्नशिप सर कैसे मैं ग्रांट ले सकता हूँ सर? और अप्लाई करने के लिए सर मुझे क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए सर, अगर सर मैं इस एरिया में इंटर्नशिप्स करना चाहता हूँ सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंटर्नशिप्स करनी है ना, तो सबसे पहले तो सीखो कोई टेक्नोलॉजी को, उसके साथ उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओ। जब इतना तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया है ना, तुमने अपने रिज्यूमे में स्किल्स मेंशन कर दी, मैंने ये स्किल्स सीखी है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसके बाद तुम इंटर्नशाला पे जा सकते हो। इंटर्नशाला पे जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें खूब सारी इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी वेब डेवलपमेंट की, तो तुम वहां से अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशाला बेस्ट है इंटर्नशिप के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। If anyone has any more doubts, you can raise your hands. I also encourage everyone to scan the QR code so that you can avail the certificate of this session. Those who have or will attend more than 6 sessions out of 12 will get a voucher from interviewcake.com. So kindly join with the same email IDs.